नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। 10 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैबिन का उद्घाटन, 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन और स्कूलों का वार्षिक खेलकूद आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच में अधिवक्ताओं और लिटिगेट्स के लिए 10 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैबिन का आज वर्चुअली उद्घाटन हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच में अधिवक्ताओं और लिटिगेंट्स के लिए 10 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैबिन का आज कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. शिवाज्ञानम ने वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट का आयोजन करते हैं, माननीय न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रभारी न्यायाधीश न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य, प्रभारी अवर न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की गरिमामय उपस्थिति रही। Yes. And may I request Honorable Justice Madhuresh Prasad, Honorable Justice Supreme Bhattacharya to unveil the flag physically on behalf of Honorable the Chief Justice. Please. Yes. पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट आयोजित करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद और माननीय न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य ने मुख्य न्यायाधीश की ओर से पट्टिका का अनावरण किया और दीप प्रज्वलित किया। It gives me immense pleasure to be associated with this occasion, which is an important moment for all the stakeholders, as once again the Calcutta High Court, under the inspiring leadership and guidance of our Honorable the Chief Justice, unveils an initiative to promote access to justice, surmounting the issue of physical distance in dispensation of justice by setting up 10 VC courts. इस दौरान उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच के उप रजिस्ट्रार भवानी शंकर शर्मा और द्वीप समूह के उप जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार तथा अन्य अधिकारियों, अधिवक्ताओं और न्यायालय के अधिकारियों की उपस्थिति में रिबन काटकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैबिन का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में माननीय मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवाज्ञानम ने कहा कि यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैबिन भारत में कार्यरत माननीय उच्च न्यायालयों के सर्किट बेंच में अपनी तरह का पहला कैबिन है और इससे लिटिगेंट्स और अधिवक्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा अन्य न्यायालयों तक आसान पहुंच का लाभ मिलेगा। It gives me great pleasure to be part of this inaugural ceremony where we have inaugurated 10 video conferencing cabins in the circuit bench at Port Blair. I am informed that it is a first of its kind in the country where a circuit bench has got dedicated 10 VC cabins located in the same court complex. Few years back, the devastating COVID-19 affected our lives. Everything came to a standstill, and more particularly in the islands, people suffered a lot. The High Court at Calcutta at that time took a very proactive step, and it opened a gateway for the learned advocates and litigants to approach the High Court through virtual mode, so as to ensure that justice is not delayed or denied. As we all know, the Andaman and Nicobar Islands are union territory. It's an archipelago, it's a cluster of islands. So sometimes it's very difficult to travel physically between the islands also. In some places it takes the larger part of the day to travel from Port Blair to those places like Mayavandar and other places. So the establishment of these video conferencing cabins would help immensely, not only to have access to the outside world but also to the several districts of Andaman itself, Andaman and Nicobar Islands. Apart from that,
through these VC cabins, one can have access, as the Honorable Chief Justice rightly pointed out, to the principal bench, to other circuit benches, other high courts, the Supreme Court. Not only that, also to any district court in India having this facility, video conferencing facility. We gather today to mark the inauguration of the video conferencing facility made available at the court complex in Andaman and Nicobar Islands. I am honored to propose the vote of thanks. At the very outset, I would like to express my deepest gratitude to the Honorable the Chief Justice, T.S. Shivagnanan, for gracing this occasion with his presence. It is by his support and encouragement that the video conferencing facility at the port complex in Andaman and Nicobar Islands has become a reality. Considering the geographical location of the islands, the above facility, which is a milestone in itself, would go a long way to cater to the needs of the islanders to its right for access to justice. लिटिल अंडमान के सामुदायिक विकास खंड ने कल लिटिल अंडमान के पंचायत समिति हॉल में संपीड़क खंड पंचायत विकास योजना बनाने की रणनीति पर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह पहल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित की गई थी और इसमें खंड योजना समिति और पंचायत समिति के सदस्यों सहित स्थानीय अधिकारियों को लक्षित किया गया था। लिटिल अंडमान में पंचायत समिति के उप प्रमुख राजा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। खंड विकास अधिकारी बिल्तेजर ने खंड पंचायत विकास योजना और ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में प्रकाश डाला। राज्य कार्यक्रम प्रबंधक मोहम्मद आरिफ ने खंड पंचायत विकास योजना की तैयारी के लिए रूपरेखा और खंड पंचायत विकास योजना तैयार करने के चरणों और सरकारी योजनाओं को एकीकृत करने आदि पर चर्चा की। कार्यक्रम में सहायक अभियंता जी संतोष कुमार, कनिष्ठ अभियंता जी वेंकटरमन और पंचायत समिति सदस्य ई महेश्वरी द्वारा जीपीडीपी, बीपीडीपी ग्राम सभाओं और सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर चर्चा भी की गई। ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश शाखा द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय तथा आपदा प्रबंधन निदेशालय के सहयोग से आपदा प्रबंधन भवन के सम्मेलन हॉल में आपदा प्रबंधन में नर्सों की तैयारी और प्रतिक्रिया पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में द्वीप समूह के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के 30 नर्सें, नर्सिंग अधिकारियों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, नागरिक स्वास्थ्य नर्सें तथा एएनएम भाग ले रही है। मौके पर आपदा प्रबंधन की निदेशक प्रियंका कुमारी मुख्य अतिथि थी, जबकि स्वास्थ्य सेवा निदेशक सुजा एंथोनी सम्माननीय अतिथि थी। कार्यशाला में नर्सिंग ट्यूटर सोनिया पियर्स, एएनएम स्कूल आपदा प्रबंधक वरिष्ठ परामर्शक डॉक्टर स्वपन, नर्सिंग ट्यूटर लिसी सुदेश, अग्निशमन सेवा के एएसआई कन्ना दासन को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने अपने अपने विचारों को उपस्थिति के साथ साझा किया। So despite these demands, disaster preparedness is often overlooked in our traditional nursing education, and today's CNE is mainly aimed at bridging this gap. नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो केवल कमर्शियल पर्पस से नहीं होता। अगर जिसके अंदर डेडिकेशन नहीं है, जिसके अंदर मतलब बियरिंग कैपेसिटी नहीं है, वो नर्स नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपको ना वैसे लोगों को ट्रीट करना होता है जो रोते रहते हैं, तो रोते हुए ही आते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तब आपके पास आते हैं। एंड नॉट ओनली द मतलब हेल्थ सर्विस आप उनको प्रोवाइड करते हो, आपका लुक, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब भी बहुत फैक्टर करता है एक पेशेंट को ठीक करने में। They have been serving all over the islands in very, very trying situations, right from Diglipur and to Campbell Bay and Gandhinagar and Kachal, Teresa. Wherever you go, you will find the nursing personnel there working with the same dedication that they work at GVPL. So I'm really, really proud of you, the nursing as well as the ANMs who work in more remote areas. We have all been through a disaster, haven't we? A tsunami was something that caught us off guard, and we responded well. Though we were not prepared for it, we responded. So that was a response to a disaster that we all did.
But what we have here today is the preparedness that we are looking at. We may have disasters in future. We may be a tsunami or an earthquake or a flood, or even disease related like the COVID that we had. So every something that happens in that quantum is a disaster. Dr. Sujanjali ma'am. श्री विजयपुरम स्थित उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड ने अपना एलपीजी शोरूम दिलानीपुर से श्री विजयपुरम में अबड़ीन बाजार स्थित सीसीएस हेड ऑफिस बिल्डिंग की पहली मंजिल पर नवनिर्मित शोरूम में स्थानांतरित कर दिया है। नए शोरूम का उद्घाटन कल अंडमान तथा निकोबार राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा ने किया। अब लेते हैं एक ब्रेक। माँ जी का कॉल आ रहा है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। बेटा पोंगल आ रहा है, वहाँ पे हमारे लिए पोंगल के लिए अच्छे कपड़े तो मिल जाएंगे ना? माँ जी आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगी। कहाँ से मिला? जब मैंने थोड़े आसपास के लोगों से पूछा तो समझ आया कि गोइनकास ही सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कलेक्शन का शॉप है। अरे वाह, क्या बात है। अंडमान में नए आए हो या यहीं से हो, पोंगल का सबसे बेस्ट कलेक्शन गोइनकास में ही मिलता है। हर एक लोगों का कहना है कि हम सबका पसंद हमारा गोइनकास। गोइनकास फैमिली की ओर से आप सभी को हैप्पी पोंगल। गोइनकास सारबागा इनिया पोंगल नलवाल्तिकल। हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू करने को मंजूरी दी गई है। प्राकृतिक खेती के फायदे की बात आज हम आपसे करेंगे। प्राकृतिक खेती का मूल सिद्धांत क्या है? जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ो, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। अब खेत आत्मनिर्भर हो जाएगा। आत्मनिर्भर होगा तो वो खाद की मात्रा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए जो बागवानी फसलों की उपयोगिता और अधिक हो जाती है, अधिक से अधिक सुरक्षित उत्पाद जो है सबको उपलब्ध करा सके। शहर का पैसा गांव में और गांव का पैसा गांव में, ये प्राकृतिक खेती के द्वारा ही संभव हो सकता है सर। जैसे हमारी मिट्टी है ये जीवित है, अगर हमने इसके अंदर जीवाणुओं को मार दिया तो ये निर्जीव है। प्राकृतिक खेती में हर तरह का जीव है, उसको पनपने का मौका देते हैं। अमरूद प्राकृतिक होने के कारण डबल रेट में फार्म से बिकता है, जो बचता है उसका सिरका बनाते हैं, जो डायबिटीज में रामबाण औषधि है। और ये केमिकल के मंडियों में जाओगे तो ना तो कोई प्रॉफिट है ना कोई मान सम्मान है। मैं सभी भाइयों से ही कह रहा हूँ, मतलब फार्मिंग को, गौ माता को समझो। धन्यवाद। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक का दूसरा अंक 11 जनवरी दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों में इन दिनों वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज श्री विजयपुरम के स्कूल लाइन स्कूल और राजकीय बालक विद्यालय का वार्षिक खेलकूद आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम के स्कूल लाइन स्कूल का आज वार्षिक खेलकूद आयोजित किया गया। इस मौके पर शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे, जबकि उप शिक्षा अधिकारी विज्ञान राम प्रवेश सम्माननीय अतिथि थे। इस दौरान भातु बस्ती स्कूल के प्रधानाचार्य जे दासन पुष्पराज, सहायक निदेशक खेल मोहम्मद इरशाद, सहायक निदेशक खेल विश्वनाथ सेन, स्कूल के प्रधानाचार्य द्विजेंद्र राय मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने उपस्थिति का स्वागत किया। हमारे विभाग के सर्वोपरि और हम लोगों के मुखिया श्री विक्रम सिंह डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हमारे बीच पधारे। हमारे बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। इसके बाद बच्चों ने मुख्य अतिथि के समक्ष मार्च पास्ट किया। पावर का प्रतीक माना जाता है। कर रही है रोहित शर्मा, क्रिकेट क्षेत्र में एक भारतीय टीम के कप्तान है।
कदम से कदम झंडे के साथ प्रदीप नरवाल कर रहे हैं और वो कदम से कदम से कश्मिता के नेतृत्व में। इस दौरान मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण किया और स्कूल के वार्षिक खेलकूद के शुभारंभ की घोषणा की। विक्रम सिंह, डायरेक्टर of Education, declare the 45th annual athletic meet of Government Senior Secondary School Line 2025 open। इस बीच बच्चों ने मशाल प्रज्वलित कर खेल परंपरा को बनाए रखा। फुटबॉल में जो है अंडमान टीम का रिप्रेजेंट किया था। साथ ही बच्चों ने खेल कूद की प्रतिज्ञा भी ली। We promise that we will take part in the 45th annual athletic meet of Government Senior Secondary School Line। अपने संबोधन में शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने बच्चों से पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। I'll just speak 4-5 things। पहली, स्कूल के बच्चों के लिए एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। उनके पूरी की पूरी दिनचर्या में 80% पढ़ाई होनी चाहिए। इसके लिए आपके सारे टीचर्स, आपके सारे पेरेंट्स और हम लोग, वी ऑल आर ऑन सेम पेज। लेकिन अच्छी पढ़ाई हो और बच्चा फ़ोन के अंदर इन्वॉल्व ना रहे, किसी तरह की गलत संगति में, ड्रग्स में ना फंसे, उसके लिए स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 80% पढ़ाई, 20% आपके पूरे दिन का, आपकी पूरी एनर्जी का स्पोर्ट्स में रहना चाहिए। जो आप पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे जो उनको 20% जो उनको स्पोर्ट्स में देंगे, उससे सबसे ज़्यादा फायदा उनको उनकी स्टडीज़ में रहेगा। इस दौरान शिक्षा निदेशक ने बच्चों से मुलाकात की। जो फोकस करना है, चश्मा नहीं चढ़ता, अच्छे पूरे दिन एक्टिव रहते हो, बहुत स्टडीज में अच्छे रहते हो। ठीक है, ओके बाय। बाद में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। श्री विजयपुरम स्थित बालक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ने आज अपना वार्षिक खेलकूद आयोजित किया। इस मौके पर उप शिक्षा अधिकारी योजना एस सुरेश कुमार मुख्य अतिथि थे। इस बीच विभिन्न हाउस की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। प्रशंसा जो है बटोरी, वो आपके साइज के सामने से जो से गुजरते हुए बहुत सुंदर प्रदर्शन। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण कर खेलकूद के शुभारंभ की घोषणा की। ध्वजारोहण कर I declare the 109th annual athletic meet 2024-25 of Government Boys Senior Secondary School Sri Vijayapuram open। इस बीच बच्चों ने मशाल प्रज्वलित किया। साथ ही मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने आसमान में पक्षी और रंगीन गुब्बारे छोड़े। इस दौरान छात्रों ने खेलकूद की प्रतिज्ञा ली। We promise that we will take part in the 109th annual athletic meet 2024 to 2025 of Government Boys Senior Secondary School Middle Point, Sri Vijayapuram in loyal competition, respecting the rules and regulations which govern them, and desirous of participation in the true spirit of sportsmanship for the honor of our school and the glory of sports. Jai Hind! इस मौके पर उप शिक्षा अधिकारी एस सुरेश कुमार एवं अन्य अतिथि ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। आप ये दिन भर आप लोगों ने पूरा जोश के साथ जिस प्रकार आज के इस खेलकूद कार्यक्रम को अरेंज करने के लिए सोचा
और जिस प्रकार आप यहाँ अरेंज कर रहे हैं, इसको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली इस परिस्थिति में सिर्फ चैलेंजिंग प्रिंसिपल, बड़ा ही चैलेंजिंग स्टाफ मेंबर्स और उससे भी चैलेंजिंग स्टूडेंट्स ही इस वक्त स्पोर्ट्स करना चाहेंगे या आयोजन करेंगे। आपके हिम्मत और हौसला को देखकर मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित हूँ। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के उद्योग निदेशालय द्वारा श्री विजयपुरम में विभागीय प्रशिक्षण केंद्र और अन्य बाहरी प्रतिष्ठानों के माध्यम से बढ़ईगिरी, सामान्य इंजीनियरिंग, बेंत और बांस तथा सिलाई और परिधान निर्माण ट्रेड में 1 वर्षीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभाग को श्री विजयपुरम में इस ट्रेड में प्रशिक्षण लेने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग ने इस ट्रेड के लिए 25 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया है, जिसमें 10 प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार हैं, जिसे मिडिल पॉइंट के उद्योग परिसर स्थित उद्योग निदेशालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है। प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों के साथ अंतिम रूप से चयनित सभी उम्मीदवारों से अनुरोध किया गया है कि वे मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर आए। अब लेते हैं एक ब्रेक। माँ जी का कॉल आ रहा है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। बेटा, पोंगल आ रहा है, वहाँ पे हमारे लिए पोंगल के लिए अच्छे कपड़े तो मिल जाएंगे ना? माँ जी आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगी। कहाँ से मिला? जब मैंने थोड़े आसपास के लोगों से पूछा तो समझ आया कि गोइनकास ही सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कलेक्शन का शॉप है। अरे वाह, क्या बात है। अंडमान में नए आए हो या यहीं से हो, पोंगल का सबसे बेस्ट कलेक्शन गोइनकास में ही मिलता है। हर एक लोगों का कहना है कि हम सबका पसंद हमारा गोइनकास। गोइनकास फैमिली की ओर से आप सभी को हैप्पी पोंगल। गोइनकास सारबागा इनिया पोंगल नलवाल्तिकल। क्या आपको पता है आपके खाने की रोटियां जिस आटे से बनी हैं, वो गेहूं कहां से आता है? क्या आपने कभी सोचा है हमारे देश में गेहूं की कितनी किस्में उगाई जाती हैं और कौन सा आटा रोटी के लिए बेहतर है, कौन सा पिज्जा के लिए? सवाल कई हैं लेकिन जवाब। तो चलिए मिलते हैं उस शख्सियत से जिसने गेहूं उगाने से लेकर आटा बनाने तक की हर बारीकी को समझा है, और जानिए खेती से जुड़ी हर अनसुनी कहानी। मिलिए अनुष्का न्योल से। देखिए भारत की फार्म लेडी 12 जनवरी रविवार रात 8 बजे डीडी किसान पर। दस से 12 जनवरी तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस उत्सव में द्वीपों की भागीदारिता का पूरा श्रेय द्वीपों के उपराज्यपाल और मुख्य सचिव को जाता है। 4 साल के बाद इस राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेने के लिए द्वीप समूह की टीम रवाना हो रहे हैं। इस मौके पर शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले युवा उत्सव में अपना बेहतर प्रदर्शन देने का आग्रह किया। जो भी अच्छा बोलता है उसकी स्पीचेस सुनिए, सो दैट एक पता चलेगा कि वो कैसे बोलते हैं एंड हाउ वी कैन बी द बेस्ट। आपके पेरेंट्स को भी और आप लोगों को भी कि हमारे एलजी सर के आशीर्वाद से, चीफ सेक्रेटरी सर की लीडरशिप में और सेक्रेटरी सर की बहुत मुश्किल से भेजा जा रहा है आप लोगों को 100%। और हम सब स्कूल गेम्स के लिए जा रहे हैं, रांची जा रहे हैं और HGFI की तरफ से हमें खेलेंगे और हम 1 हफ्ता पहले वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वेलोड्रम नहीं है और वहाँ पे वेलोड्रम में करके हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे 1 हफ्ता पहले और 17 से हम लोगों का रांची में हम लोगों का कंपटीशन शुरू हो जाएगा। गोल्ड मेडल लेने का तो उम्मीद है, हमारे प्लेयर्स भी बहुत स्ट्रांग है, हम कर सकते हैं, इतनी तो पूरी उम्मीद है कि हम सबको बीट कर सकते हैं। ही काम करते हैं, कोई अलग अलग नहीं है। सभी लोग जो भी स्पोर्ट्स को आगे लेके जाने लग रहे हैं, सभी लोग गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो
हम ऐसा नहीं कहेंगे हमारे स्कूल के बच्चे हैं, आप ऐसा नहीं कहेंगे साई के बच्चे हैं, हम ये कहेंगे अंडमान के बच्चे है ना इरशाद साहब। और कोचेज अच्छे से लेके जाना है। मैनेजर साहब कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए है, साला पैसा पूछे में कोई नहीं कमी होनी चाहिए, ठीक है ना। मेडल आए ना आए ऐसी की तैसी यामासो, लेकिन हम हमारा 100% पुट करेंगे। रांची में 17 से 20 जनवरी तक आयोजित होने वाले 68वें SHFI राष्ट्रीय स्कूल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए अंडर 17, अंडर 19 वर्ग के लड़के व लड़कियों के 18 सदस्यों की साइकिलिंग टीम भी आज मुख्य भूमि के लिए रवाना हो रही है। इस दौरान शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह, सहायक निदेशक खेल मोहम्मद इरशाद तथा सहायक निदेशक खेल विश्वनाथ सेन खिलाड़ियों तथा उनके अभिभावकों से रूबरू है। शिक्षा निदेशक ने दूरदर्शन के माध्यम से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, साथ ही उन्होंने वेलोड्रम के मरम्मत की पुष्टि भी की। हमारे रिस्पेक्टेड HLG सर के आशीर्वाद से, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर और सेक्रेटरी सर की लीडरशिप में हमारे स्कूल के बच्चे नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए रांची जा रहे हैं। हमारे 18 बच्चे हैं। इसके अंदर साई इंस्टीट्यूट का, उनके सभी ऑफिशियल्स का, कोचेज़ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। हम उनको भी थैंक यू करना चाहते हैं। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोचेज़ ऑफिशियल्स की मेहनत से अब हमारे 18 साइकिलिस्ट जो वहाँ पर जा रहे हैं, दे आर द बेस्ट अंडर 17 एंड अंडर 19 प्लेयर। They are going and they will definitely return with the medal. One more thing to say. Secondly, the most important thing here is that कि इनके लिए वेलोड्रम रिपेयर हो जाए, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी सर और सेक्रेटरी सर ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिया है। एंड वेलोड्रम के रिपेयर का काम PWD के साथ मिलकर स्टार्ट हो चुका है। एंड मतलब नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ के अंदर वो फंक्शनल हो जाएगा। बट एक बिग रिपेयर जो वेलोड्रम का है, दैट इज़ इन करोड्स, दैट इज़ वर्किंग ऑन। और कुछ महीनों में हमारा वेलोड्रम भी कम्प्लीटली रिपेयर हो जाएगा। एंड वी आर आल्सो एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी कि वेलोड्रम के ऊपर एक तरह से इंडोर टाइप बन जाए, सो दैट बरसात का उसके ऊपर इम्पैक्ट ना रहे। ये बच्चे 2019 के बाद इस बार फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सो दैट ये सिर्फ 18 बच्चे नहीं हैं, ये हमारे आइलैंड में रहने वाले 56,000 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब ये लोग वहाँ से मेडल लेकर वापस आएंगे तो एक पॉजिटिव रोल मॉडलिंग पूरे के पूरे अंडमान निकोबार में रहेगी, जिनको देखकर और बच्चे भी साइकिलिंग के लिए प्रेरित होंगे। खंड परियोजना कार्यालय दक्षिण अंडमान द्वारा आयोजित जिला स्तरीय योग ओलंपियाड का आज पुरस्कार वितरण समारोह राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्य शिक्षा संस्थान की प्रधानाचार्य संगीता चंद मुख्य अतिथि थी। उन्होंने विजेताओं में पुरस्कारों का वितरण किया। अब यह विजेताएं राज्य स्तरीय योग ओलंपियाड में भाग लेंगे। श्री विजयपुरम के होटल सनसी रिसोर्ट में आज अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष M विनोद की अध्यक्षता में एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने ADTOI अंडमान स्टेट चैप्टर के कल आयोजित होने वाले लॉन्चिंग कार्यक्रम के उद्देश्यों और लाभों से संबंधित जानकारी मीडिया कर्मियों को दी। आप सब जानते होंगे कि एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया ADTOI, ये इंडिया का डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स का सबसे बड़ा एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन में 1200 से ज़्यादा मेंबर हैं पूरे भारत में। 14 स्टेट्स और यूटी में इनका चैप्टर है। ये बहुत मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कल 10 तारीख को 10 जनवरी को अंडमान निकोबार में ADTOI का 15वां चैप्टर लॉन्च होगा। ये 15वां चैप्टर होगा अंडमान निकोबार स्टेट चैप्टर। स्टेट का चैप्टर चेयरमैन घोषित करेंगे
ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक छोटे से यूटी में एक चैप्टर को लॉन्च करने के लिए ऑल इंडिया प्रेसिडेंट वेद खन्ना जी, वाइस प्रेसिडेंट आशीष सहगल साहब, उनके साथ 3-4 लोग प्लस टूरिज्म मिनिस्ट्री के 2-4 ऑफिशियल्स, इतना लोगों को आना ये दर्शाता है कि ARETOI भी अंडमान को प्रमोट करने के लिए, अंडमान डेस्टिनेशन को कैसा आगे बढ़ाए इस विषय में सोच रहा है। हम लोगों ने आप सबको कल के लिए निमंत्रण पत्र भी भेजा है, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को अभी बांट रहे हैं हमारे लोग। मेरा आप सबसे आग्रह है कि कल शाम को 6 बजे ये जो स्टेट चैप्टर का लॉन्च होगा, इसमें आप सब आए। और जैसा अंडमान टूरिज़्म में यहाँ के मीडिया का शुरू से एक रोल रहा है, एक सपोर्टिंग रोल प्रमोट करने में टूरिज़्म में, जहाँ हमारी गलतियाँ हैं वहाँ भी आप लोगों ने बताया, तो मैं चाहूँगा कि कल जो ऐतिहासिक दिन है, एक इतना बड़ा डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, तो आप सब इसका एक हिस्सा बने। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। 10 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैबिन का उद्घाटन, 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन और स्कूलों का वार्षिक खेलकूद आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।